So, first of all, I must thank All India Rubber Industries Association and particularly my mentor, Mr. Ashwini Sarin. Actually, he is the person who has encouraged me for giving this lecture to the All India Rubber Industries Association Forum. Basically, we know each other for many years, almost last 30 years. And I'm very happy to be here because this is one of the customer base of our company. Okay, because Jalandhar is a big customer base for our company, Pukhraj Additives also. And I must thank my MD, Mr. Narayan Masan, who has given me the permission to give these technical lectures in many places. Because he always say that knowledge is the power. And if you have knowledge, please give the knowledge and distribute the knowledge. Don't keep the knowledge with you. And I must thank my earlier director, Dr. R. Mukhopadhyay. You can see the slide. There are two names, Indian Rubber Institute, IRI, and Hassetry. Actually, whatever I am today because of Hassetry. Okay, because Dr. Mukhopadhyay, who has given all the empowerment of knowledge within me, and right from beginning in 1992 when I started in Kankroli, Rajasthan, after completing my MTech from Calcutta University, I was selected from the campus interview and I joined JK Tyre R&D Center. And Dr. Mukhopadhyay, in those days, he came from Bayer India Limited and he was put as the director R&D in JK Tyre. And the first day onwards, he used to tell us, learn, learn and learn. If you don't read, if you don't inculcate the culture of learning, you will never improve in the life. And always we have tried to learn. And basically rubber industry, what Sarin sir has told, we have to give back what we have got from our life. We have earned our bread and butter from this industry. We must try to give back something to the industry. And today, in this session, we will talk about the different rubbers and also their compounding. So first, we'll say about a little bit about the science and rubber science and technology. What is rubber and how the rubber is important, so important. The particular rubber is very important because it has got the property of flexibility. Any damping action, you require the presence of the rubber. And you know the importance of the rubber, the small seal which is made of rubber, and it basically the leakage of the seal got the crash of the Kalpana Chawla, that aerospace, that material. Because of the seal leakage, and there was an explosion, and that they all expired. Because of that, Kalpana Chawla is a girl from Haryana, and very talented lady, and she was in the NASA. But because of the small seal, the life of Kalpana Chawla and the associated people were no more. So such an importance of the rubber item, okay? And rubber is very important because rubber has some typical properties like glass transition temperature. The glass transition temperature, it is what this property of rubber basically decides at what low temperature a rubber product can be used. Glass transition means change. The rubber is basically flexible. A rubber ball, if we just bounce, it comes back because of rebound resilience. But at glass transition temperature, the same ball will be converted as a glass. At that temperature, the rubber ball will behave like a glass. If we throw the glass becomes brittle. So same thing will happen with the rubber ball when the ball will be brought to the glass transition temperature. So glass transition temperature is very important because glass transition temperature will decide the low temperature application of the rubber product. So we must know about glass transition temperature. We must know what is the highest temperature
a rubber product can be used. So what is the application temperature? Application temperature may be positive, may be negative. So negative side will be the glass transition temperature and positive side will be the, like we decide natural rubber product, any natural rubber product you can use at a temperature of 70 degrees centigrade. At a constant 70 degrees centigrade, natural rubber product can withstand. But if you go beyond 70 degree, natural rubber product may not survive. So above the natural rubber, the SBR, styrene butadiene rubber. The styrene butadiene rubber can withstand a temperature of 100 degree. Constantly if we use the SBR compound can withstand a temperature of 100 degree. Okay, like EPDM. Next is the EPDM. The EPDM or the EPR, these rubber, they can withstand a temperature of 120 or 125 degree. Butyl also, it can withstand a temperature of 120 degree. Nitrile, acrylic, these rubbers, they can withstand a temperature of 150 degree. Okay? Silicon rubber can withstand a temperature of 200 degree. Silicon is 200 degree. Okay, fluorosilicon is 225 degree. And the Viton or the FKM can withstand a temperature of 250 degree. So these are the application temperature. 70 degrees natural rubber, 100 degrees SBR, 120 degree to 125 degrees butyl and EPDM, 150 is nitrile, acrylic, polychlorophene, all these are around 150 degree. And 200 degrees silicon rubber, fluorosilicon is 225 and Viton or FKM and HNBR, both are 250 degree. So all these rubbers are used in the rubber industry. Those who are manufacturing the general purpose items, general purpose means that will have not any special application. So they will be using 4 rubbers: natural rubber, SBR, polybutadiene rubber and the synthetic polyisoprene rubber. These 4 rubbers are used by the general applications, okay, where there is no special requirement like the oil resistance, heat resistance and so on. Okay, air retention property, all these things are not required. So general application, the rubbers are only 4: natural rubber, SBR, polybutadiene and polyisoprene. Butyl, when we talk about butyl rubber, butyl comes in the air retention property. If we have to hold the air, if we have to hold any gas or any liquid with a rubber product, that will be the butyl. So butyl and chlorobutyl or bromobutyl, chloro and bromo and butyl, all these will be used for retention purpose, impermeability purpose. Okay, when we have to hold anything, we have to select this type of rubbers: butyl rubber, chlorobutyl and bromobutyl. Now, butyl and natural rubber. Okay, what is the problem? Butyl and natural, they are enemy to each other. Butyl will not like the natural rubber. Natural rubber will not like the butyl. Why it is? Because butyl is very low unsaturated rubber. Very low. How much unsaturation? 1 to 3% unsaturation. What is unsaturation? Unsaturation means presence of double bond. Unsaturation is nothing but presence of double bond. And what is saturation? Saturation means when all carbon atoms are joined by single bond. If in the rubber all carbon atoms are joined by single bond, this will be called saturated. When there is a presence of a double bond or triple bond, the rubber will be called unsaturated. So saturated and unsaturated. What is the advantage of saturated? Saturated means no degradation. Rubber will not degrade. Rubber will not degrade by oxygen and ozone.
no degradation will take place if the rubber is saturated. Who are the saturated rubber? Saturated rubbers are ethylene propylene rubber. Okay, EVA. EVA is a saturated rubber. Why the EVA is so popular? Nowadays, EVA is used by the footwear industries because the EVA, you know, EVA is such a beautiful polymer. EVA is used in the cable. Okay, why in the cable? Because EVA has a beautiful property which is called banana peeling effect. Suppose you take a ripe banana, अपने पक्का केला जो है ना, पक्का केला का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। ईवा का भी ऐसा प्रॉपर्टी है। ईवा कैन इजीली बी पील्ड ऑफ एंड दैट्स व्हाई ईवा कम्स इनटू द केबल एप्लीकेशन। केबल में आपको क्या करना पड़ता है? वो जो इंसुलेटर है ना, जो रबर इज ए इंसुलेटर। रबर का क्या काम है? इंसुलेट करना। आपका अंदर में कंडक्टर वायर होता है, वो कंडक्टर वायर में टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा, लेकिन जैसे रबर को आप टच करेंगे तो शॉक नहीं लगेगा। रबर इज इंसुलेटर। अभी क्या होता है, वो इंसुलेटर को काट के वो लोग वायर निकालता है, अंदर का मेटल वायर निकालता है। तो ये जो निकालने का काम है ना, इन ईवा इट इज वेरी इजी। ईवा में इजीली निकल जाता है, वो इसको बोलता है बनाना पीलिंग इफेक्ट। ओके, एंड ईवा इज वेरी लाइट वेट। Why the EVA is so popular in the footwear industry? Because EVA is very lightweight. आपको कंफर्ट मिलता है, EVA पहनने से आपको आराम मिलता है। ओके, जो स्लीपर है आज के दिन में, घर का जो चप्पल है, घर का चप्पल ऑल आर बेसिकली EVA. The earlier days it was the natural rubber चप्पल, हवाई चप्पल हुआ करता था। हवाई चप्पल का जो दिन है ना, वो EVA ने बदल दिया है। हवाई चप्पल हेवी होता है, कंपैरेटिवली हेवी, सो ईवा लोगों ने पसंद किया बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। ओके, सो ईवा इज वेरी स्टेबल, सैचुरेटेड होने का कारण ईवा में डिग्रेडेशन नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। नेचुरल रबर में क्या तकलीफ है? नेचुरल रबर का जो चप्पल है ना, हवाई चप्पल, कुछ दिन बाद आपको याद होगा, आज से 30-40 साल पहले हवाई चप्पल वेरी पॉपुलर था। एंड जो बाटा, लाखानी, खादिम, ये सब जो कंपनीज है, ये लोग वो नेचुरल रबर का चप्पल बनाते थे। और नेचुरल रबर का चप्पल का जो लेस होता था वो आपका ब्लू कलर का। ओके, कुछ दिन बाद आप देखते हैं वो जो ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर चेंज होता है, कलर उसका बदल जाता है, धीरे धीरे वो थोड़ा व्हाइटिश होता है, ब्लू कलर फेड होता है। ये जो फेड हो रहा है, क्यों फेड हो रहा है? फेड हो रहा है बिकॉज द नेचुरल रबर इज डिग्रेडिंग। नेचुरल रबर का डिग्रेडेशन हो रहा है। नेचुरल रबर ऑक्सीजन एंड ओजोन के कारण नेचुरल रबर का डिग्रेड कर रहा है। डिग्रेड कर रहा है तो वो धीरे धीरे क्रैक हो रहा है। डिग्रेडेशन का क्या होता है? शुरू में जब डिग्रेडेशन चालू होता है, एक आपका पिन होल फॉर्मेशन होता है। पिन होल माने एक जो छोटा सा पिन है ना, वो छेद करने से जितना डायमेंशन होगा उतना उसका डायमेंशन होता है। अभी जब आप चलते हैं, जब डायनामिक एप्लीकेशन होता है, एक्सटेंशन, कंप्रेशन ऐसा होता है, तो क्या होता है, वो होल धीरे धीरे बढ़ता है, वो पिन होल इंक्रीजेस एंड उसका लेंथ बढ़ता जाता है एंड एक टाइम आता है जब वो फट जाता है। सो ये इसको बोलता है क्रैक, इसको बोलते हैं फेलियर ड्यू टू द क्रैक। सो क्या होता है, पहले पिन होल फॉर्मेशन होता है एंड वो पिन होल जैसे आप कंप्रेशन एक्सटेंशन मिलेगा वो बढ़ता जाएगा। सो इसको बोलते हैं क्रैक ग्रोथ। क्रैक का ग्रोथ हो रहा है एंड क्रैक ग्रोथ फाइनली क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन इन द अनसैचुरेटेड रबर। अनसैचुरेटेड कौन कौन रबर है? नेचुरल रबर है, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रबर है नेचुरल रबर। सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन में रबर इंडस्ट्री में जितना रबर है, सबसे इंपॉर्टेंट रबर है नेचुरल रबर। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है नेचुरल रबर? क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नेचुरल रबर इज वेरी इकोनॉमिकल एंड आल्सो नेचुरल रबर हैज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ। नेचुरल रबर में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। जितना सारा रबर है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको नेचुरल रबर में मिलेगा। ओके, अभी जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ ना,
तो क्या हुआ, नेचुरल रबर बनाने वाला कंट्री था एशियन कंट्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, चाइना, ऑल दिस कंट्री आर प्रोड्यूसिंग द नेचुरल रबर। अभी वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ, यूरोप एंड जापान, उधर का कंट्री जर्मनी एंड जापान, ये सब लड़ रहा था। तो क्या हो गया, ये एशियन कंट्री ने बोला कि हम रबर नहीं देंगे, नेचुरल रबर नहीं देंगे। उस जमाना में जितना टायर था वो नेचुरल रबर का टायर हुआ करता था। एंड नेचुरल रबर का टायर सडनली यूरोप में क्या हो गया, नेचुरल रबर का शॉर्टेज हो गया, बिकॉज जिससे लड़ रहा है वो कंट्री उसको नेचुरल रबर देने में मना कर दिया। मना कर दिया तो क्या होगा, फिर उन्होंने एसबीआर बनाया। जर्मनी ने पहले एसबीआर बनाया, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये पहले जर्मनी ने बनाया। एंड इट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव रबर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर को अगर आपको रिप्लेस करना है, इजीली यू कैन रिप्लेस बाय एसबीआर। एंड उन्होंने बाद में सिंथेटिक पॉलीआइसोप्रीन बनाया। सिंथेटिक पॉलीआइसोप्रीन क्या है, ये जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर का नाम भी पॉलीआइसोप्रीन है। ओके, एंड इसमें देखिए क्या है, इसमें सिस बोलता है, सिस पॉलीआइसोप्रीन, सिस पॉलीब्यूटाडाइन। जो रबर होता है ना, मोस्ट ऑफ द रबर आर सिस कॉन्फिगरेशन। सिस होता है, सिस माने जो ग्रुप्स है ना, वो सिमिलर ग्रुप्स आर इन वन साइड। ट्रांस माने क्या है, ट्रांस का मतलब मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर ट्रांस। सिस में क्या होता है, रबरी कॉन्फिगरेशन होता है। ट्रांस में, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्लास्टिक हो जाता है, रिजिडिटी जनरेट होता है ट्रांस में। ट्रांस माने क्या है, ट्रांस माने एक ग्रुप अगर इधर है, दूसरा ग्रुप उधर है, अदर साइड ऑफ द प्लेन है। सिस में क्या होता है, सेम साइड में रहता है। ट्रांस में ऑपोजिट साइड में हो जाता है, तो क्रिस्टलिनिटी डेवलप होता है, तो हार्डनिंग तैयार होता है और आपका प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है। Most of the plastics are trans character. Most of the rubbers are cis character. तो cis polyisoprene जो है वो दो टाइप का रबर है। एक है नेचुरल रबर जो कि ना अपने एक ट्री से मिलता है। ये ट्री का नाम है हिबिया ब्राजीलियनसिस। हिबिया, ये जो हिबिया है, हिबिया ट्री जो है, ये आपका अमेज़न रिवर जो है, साउथ अमेरिका में अमेज़न रिवर के दोनों साइड में इसका प्लांटेशन था, हिबिया ट्री का। सो हिबिया ट्री से क्या होता है, उसमें से एक मिल्क जैसा सब्सटेंस निकलता है, उसको बोलता है लैटेक्स। ओके, नेचुरल रबर लैटेक्स। ये जो लैटेक्स है, ये लैटेक्स को कोआगुलेट करता है। ये लैटेक्स जो है, ये लैटेक्स आपका जैसे घर में हम दूध लेते हैं ना, लैटेक्स इज सिमिलर टू द मिल्क। अब ये मिल्क को आपने बॉयल नहीं करेंगे, मिल्क को लेके आपने रख दिया तो मिल्क क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। कैसे डिग्रेड हो रहा है, बिकॉज का बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को अटैक करता है। ओके, सो लैटेक्स में भी सेम चीज होता है। लैटेक्स में हम लोग क्या करते हैं, लैटेक्स में हम एसिड मिलाते हैं। ओके, हम लोग क्या एसिड मिलाते हैं, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ऐसा एसिड मिलाते हैं। मिला के उसमें क्या कोआगुलेट करते हैं। कोआगुलेशन में क्या होता है, कोआगुलेशन में रबर जो पोर्शन है वो अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। ये जो लैटेक्स है, लैटेक्स में 40% ड्राई रबर होता है। लैटेक्स का ड्राई रबर कंटेंट इज ओनली 40%। 60% क्या है, वाटरी सब्सटेंस है, वाटर पानी है। तो क्या करता है, लैटेक्स से जब रबर बनाता है, उन्होंने पहले लैटेक्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करने से क्या होता है, डीआरसी कंटेंट बढ़ता है। सो डीआरसी कंटेंट बढ़ाने के लिए 60% करने के लिए उन्होंने लैटेक्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के बाद उन्होंने कोआगुलेट करते हैं। सो 60% डीआरसी मिलता है आपको अगर लैटेक्स को कॉन्सेंट्रेट किया जाए। लैटेक्स जो है, इतना हम लैटेक्स का बात क्यों कर रहे हैं, हर रबर का लैटेक्स से उत्पन्न होता है। हर एक रबर, कोई भी रबर ले लिया, सिंथेटिक रबर ले या नेचुरल रबर ले, सभी का मदर लैटेक्स होता है। एंड लैटेक्स को कोआगुलेट करके रबर बनाया जाता है। सो ये जो लैटेक्स है, ये लैटेक्स में आपने क्या करता है, एसिडिफिकेशन करते हैं। एसिड डालने से उसका फट जाता है। जैसे हमने नींबू डालते हैं दूध में, नींबू में क्या है, साइट्रिक एसिड है।
साइट्रिक एसिड डालने से वो दूध भी फट जाता है। सेम चीज हमने एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड डालने से नेचुरल रबर या कोई भी लैटेक्स में आपका वो कोआगुलेशन हो जाएगा। तो लैटेक्स को हम लोग लैटेक्स से रबर निकालते हैं। एंड रबर को क्या करता है, जैसे हमने कोई एसिड डाला या रबर के अंदर कोई स्टेबिलिटी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एमोनिया डालते हैं। एमोनिया क्या होता है, एमोनिया इज द स्टेबिलाइजिंग एजेंट ऑफ द लैटेक्स। लैटेक्स आपने अगर ट्री से जो आया उसको आपने स्टेबिलाइज नहीं करके अगर स्टोर किया, कुछ दिन बाद क्या होगा, वो लैटेक्स फट जाएगा, अपने आप फट जाएगा। इसलिए लैटेक्स में क्या होता है, लैटेक्स का डिब्बा खुलने से आपको एक अपने जो यूरिनल है ना, पब्लिक यूरिनल का जो स्मेल है ना, लैटेक्स का डिब्बा खुलने से, ढक्कन खुलने से वैसा स्मेल मिलता है। ये जो स्मेल है ये अमोनिया का स्मेल है। तो आपको जो यूरिनल है, यूरिनल में सेम स्मेल मिलेगा लैटेक्स का जैसा डिब्बा खुलने से जो स्मेल है, क्योंकि लैटेक्स में हम लोग अमोनिया मिला है। बेसिकली दैट स्मेल इज ड्यू टू द अमोनिया। ये अमोनिया क्या करता है, रबर को स्टेबिलाइज, लैटेक्स को स्टेबिलिटी देने के लिए डाला जाता है। तो उसमें अमोनिया इज बेस, फिर हमने ऊपर से एसिड डाला, तो क्या हुआ, एसिड एंड बेस उसमें मिला हुआ, इसलिए वो रबर को बहुत अच्छे से वॉशिंग करना पड़ता है। वॉशिंग करके क्या होता है, ये आपने जितना भी फॉरेन मटेरियल आपने ऐड किया था उसको निकाला जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो रबर को आपने आइदर क्राम रबर या सीट रबर बनाएंगे। नेचुरल रबर में क्या होता है, क्राम होता है जो हम लोग ब्लॉक रबर बोलते हैं, टेक्निकली स्पेसिफाइड रबर बोलते हैं। ओके, TSR हम लोग जो मलेशिया इंडोनेशिया से जो भी लेके आ रहे हैं ना, जो TSR 20, अगर मान लीजिए TSR 20 हम लेके आ रहे हैं, TSR 20 जो 20 नंबर क्या है, 20 जो है, 20 में मतलब है 0.2% उसमें डार्क है। वो रबर के अंदर 0.2% डार्क है। ओके, जो 10 है, मान लीजिए SMR स्टैंडर्ड मलेशियन रबर। ओके, मलेशिया से आपने रबर लेके आया SMR अगर 10 नंबर है मतलब है 0.1% डार्क है। अगर 20 है 0.2% डार्क है। अगर 50 है 0.5% डार्क है। जितना डार्क का कम नंबर होगा, कम अमाउंट होगा, उतना प्योर रबर। SMR 50 जो है वो सबसे ज्यादा है 0.5, और SMR 5 जो है, SMR 5 0.05% डार्क है। जितना डार्क कमती होगा उतना रबर बढ़िया होगा। ओके, डार्क क्या करता है, ये डार्क क्या है, व्हाट इज डार्क? ये जो डार्क है, डार्क होता है आपका पेड़ का प्रोडक्ट है। अभी वो पेड़ का प्रोडक्ट नीचे गिरा, लैटेक्स नीचे गिर गया, एक पॉट में कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो पॉट भर गया। ये मैनुअल ऑपरेशन है, पॉट भर सकता है, तो नीचे जो गिरता है उसको लोग वेस्ट नहीं करते, उसको भी ले लेते हैं। और क्या होता है, वो जो पॉट में पेड़ का छिलका, पेड़ का पत्ता, ये सब गिरता है। ऑल दिस थिंग्स बिकम्स एज डार्क। ये डार्क क्या करता है, रबर प्रोडक्ट में इसका क्या रोल है, ये डार्क क्या करता है, डार्क एक्चुअली टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम कर देगा। जहां पे डार्क है वहां से प्रोडक्ट फेल करेगा। कोई भी रबर प्रोडक्ट जो है, ये डार्क या एफएम का क्या रोल है, डार्क या एफएम रहने से वहां से फेलियर स्टार्ट होगा, वहां से वो फेल करना चालू होगा। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। डंबल, 5 डंबल हम तोड़ते हैं, 5 डंबल में अगर आपका रीडिंग पांचों का बराबर आ रहा है, इसका मतलब है बहुत अच्छा डिस्पर्शन है, कंपाउंड के अंदर बहुत अच्छा डिस्पर्शन है, तभी 5 डंबल, पांचों का 5 बढ़िया रिजल्ट दिया। और पांचों में से अगर आपको 5 प्रॉपर्टी मिल रहा है, या दो सही दिखा रहा है, 3 खराब दिखा रहा है, इसका मतलब है आपका कंपाउंड का डिस्पर्शन हुआ नहीं। अब ये डिस्पर्शन, व्हाट इज डिस्पर्शन? ये डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन का मतलब है पार्टिकल साइज रिडक्शन। किसको डिस्पर्स करेंगे?
आपने किसको डिस्पर्स करेंगे? जो भी पाउडरी मटेरियल आप डाल रहा है उस प्रोडक्ट रबर के अंदर, उसको डिस्पर्स करना पड़ता है। उसका डिस्पर्शन का मतलब है उसमें जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल को आपको पहले क्रश करना पड़ेगा, पार्टिकल ब्रेक डाउन। ये जो पार्टिकल ब्रेकिंग है ना, इसको बोलता है डिस्पर्शन। हाउ वेल यू हैव क्रश्ड द पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। और होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इवेंटली आपने सारे चीज को इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, एक रबर का ऐसा आपने अगर सीट लिया, उस सीट में अगर सारे जगह में, उस सीट का सारे जगह में अगर पार्टी जो भी आपने मिलाया वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है जब आपको होमोजेनाइज प्रॉपर्टी मिलेगा, होमोजेनाइजेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है होमोजेनाइजेशन। You are going to get the same property from all over the seat. All over the seat से अगर same property चाहिए तो आपको सारा मटेरियल आपने जो मिलाया है उस मटेरियल को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सारा मटेरियल प्रेजेंट रहेगा in equal amount in all the area of that seat. Okay? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। So dispersion क्या है? पार्टिकल साइज रिडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो दो प्रॉपर्टी है, ये कंपाउंडिंग समझने के लिए दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी जो हम लोग जो मिक्सर यूज करते हैं, जैसे हम लोग टू रोल मिल करते हैं या वैनबेरी करते हैं या रीडर करते हैं, ठीक है ना? टू रोल मिल जो है, अगर आप मिल देखेंगे, मिल का जो सरफेस है एकदम प्लेन है। ओके, मिल मिक्सिंग व्हाई इट इज सो लार्ज? बिकॉज इसमें मिल में कोई आपका ब्लेड टाइप का थिंग नहीं है। आपका जो वैनबेरी होता है ना, या रिगर होता है या इंटरमिक्स होता है, इसमें आप देखेंगे इसका एक नीडल माने इसका एक विंग होता है। अगर देखेंगे अंदर में रोटर है, रोटर क्या काम कर रहा है? रोटर इज एक्टिंग लाइक द नाइफ का काम कर रहा है। और टूरोल मिल में भी नाइफ लगता है। वो नाइफ कौन ले रहा है? वो जो टूरोल मिल का जो ऑपरेटर है वो कट कर रहा है। बट वैनबेरी में इतना जल्दी क्यों मिक्सिंग हो जाता है? बिकॉज द कटिंग एंड फोल्डिंग इज ऑटोमेटिक। यहाँ पे टूरोल मिल में एक ऑपरेटर, एक मैन ने कर रहा है, सो ही टेक्स लॉन्ग टाइम, इसलिए टूरोल मिल मिक्सिंग इज सो लॉन्ग। जनरली वैनबेरी मिक्सिंग अगर 5 मिनट में हो जाता है, टूरोल मिल मिक्सिंग हो 40 से 1 घंटा लगेगा, 40 मिनट से 1 घंटा। ओके, सो क्यों लग रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो ऑपरेशन है मैनुअल और वहाँ पे ऑपरेशन इज ऑटोमेटिक। आपने लोड कर दिया एंड अंदर में चल रहा है, अंदर में घूम रहा है एंड ऊपर से रैम है, रैम उसको प्रेशराइज कर रहा है, तो मिक्सिंग इज टेकिंग प्लेस ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? अभी क्या कर रहा है? ये जो रोटर है, रोटर क्या कर रहा है? कटिंग का काम कर रहा है। और रैम क्या कर रहा है? रैम इज गिविंग द प्रेशर। रैम इज नॉट अलाउइंग द कंपाउंड टू गो अप। सो क्या होता है? कंपाउंड और रोटर के बीच में ही रहता है। रैम ने उसको प्रेशर देके रोटर के बीच में घुमा रहा है, तो आपका ऑपरेशन बिकम्स वेरी क्विक एंड आपने डोर खोल के डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज डोर होता है। यहाँ पे क्या होता है? पहले ऊपर में हॉपर होता है। हॉपर में क्या होता है? हॉपर से आप सारा मटेरियल अंदर डालते हैं। ठीक है, बीच में क्या है? रोटर है, चेंबर है एंड आपका ऊपर से रैम है। ठीक है ना? नीचे डिस्चार्ज डोर है। और वैनबेरी का जो भी माल गिरेगा ना, वो आपको सीट बनाना पड़ेगा। रबर इंडस्ट्री में क्या है? हर एक जगह में आपको सीट बनाना पड़ेगा। क्यों सीट बनाना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू स्टोर, ओके, इवेंटली स्टोरिंग। और ये जो सीट है, ये सीट में आपको सीट एक दूसरे को अगर गर्म कंडीशन में लगा देंगे, क्या होगा? वो चिपक जाएगा। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सीट के बीच में हम एक फॉरेन मटेरियल डालते हैं, आइदर सोप सॉल्यूशन या क्ले टाइप ऑफ मटेरियल, एनीथिंग वी जस्ट put inside the two surfaces so that they do not stick. Sticking, otherwise they will stick. They will
become joined each other. Because क्या है, rubber is a very tacky material. Tack होता है. Tack में what is tack? अब ये tack बोल दिया. तो दूसरा टर्म आ गया tack. Tack का मतलब क्या है? Tack का मतलब है रबर से रबर चिपकना. ये tack है. अगर रबर मेटल से चिपक रहा है, this is not tack. रबर अगर वुड से चिपक रहा है, it is not tack. जब सबस्ट्रेट डिफरेंट हो जाता है, रबर हुआ और मेटल हुआ, तो रबर टू मेटल ये जो है इसको बोलते हैं स्टिकिंग. स्टिक और रबर टू रबर जब है इसको बोलते हैं टैग. ओके, सो टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग ए कंपोजिट मटेरियल. जब आप बेल्ट बना रहा है, जब आप होस बना रहा है, जब आप टायर बना रहा है, ये टैग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक दूसरे को साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, बिल्ड अप करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको फुटवेयर का सोल बनाना है, सो टैग मे नॉट बी दैट मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या है, आपने मिक्सिंग किया एंड देन मोल्ड में डाल दिया. ओके, मिक्सिंग एंड मोल्डिंग, ये जो फुटवेयर कंपनी का जो ऑपरेशन है, उन लोग का मिक्सिंग एंड देन मोल्डिंग. ओके, लेकिन जो बिल्ट अप आर्टिकल बनाता है, दे मे हैव मिक्सिंग, कैलेंडरिंग एंड मोल्डिंग, और मिक्सिंग, एक्सट्रूजन, कैलेंडरिंग एंड मोल्डिंग, ऑल ऑपरेशंस. अभी देखिए मिक्सिंग में, अभी मिक्सिंग और कैलेंडरिंग में क्या फर्क है? मिक्सिंग से भी आप सीट बना सकते हैं और कैलेंडर से भी आप सीट बना सकते हैं. क्या फर्क है दोनों में? मिक्सिंग भी दो रोल के बीच में हो रहा है, कैलेंडरिंग भी दो रोल के बीच में हो रहा है. लेकिन फर्क क्या है? मिक्सिंग में क्या होता है? मिक्सिंग में यू कैनॉट मेंटेन द इक्वल डायमेंशन. अगर थिकनेस, अगर यूनिफॉर्म थिकनेस चाहिए, मिक्सिंग कैनॉट गिव यू द यूनिफॉर्म थिकनेस. देयर विल बी वेरिएशन इन द थिकनेस. लेकिन अगर कैलेंडरिंग अगर आप करेंगे, कैलेंडर थ्रू द कैलेंडर यू कैन गेट द यूनिफॉर्म गेज और यूनिफॉर्म थिकनेस. ये कैलेंडर और मिक्सिंग का फर्क है. कैलेंडर में क्या होता है? कैलेंडर में भी 2 रोल, 3 रोल और 4 रोल. ओके, अगर 2 रोल कैलेंडर है आपके पास, अगर 2 रोल कैलेंडर है, आप क्या कर सकते हैं? यू कैन ओनली मेक ए सीट, रबर सीट. बट अगर आपके पास 3 रोल है तो क्या कर सकते हैं? आप between the 2 roll you can apply the rubber and the another 2 roll you can apply the cord. Okay, it may be textile cord, it may be steel cord, anything. So 3 roll होने से क्या होगा? आपको one side coating हो सकता है. क्या बोला? one side coating. one side क्यों है? क्योंकि both side करने के लिए आपको 4 roll कैलेंडर चाहिए. अगर both side coating करना है रबर सीट का, और रबर सीट नहीं, अगर कॉर्ड का both side रबराइज्ड करना है, ओके, तो आपको क्या चाहिए? 4 रोल कैलेंडर चाहिए. 3 रोल अगर आपके पास है तो क्या होगा? सिंगल साइड होगा, लेकिन आपको दोबारा चलाने से बोथ साइड कर सकते हैं. 2 बार ऑपरेशन होगा. ओके, 2 बार ऑपरेशन में 3 रोल कैलेंडर कैन आल्सो गिव यू द बोथ साइड कोटिंग. बट 4 रोल में क्या होगा? एक ही बार में आपका हो जाएगा. ये हो गया कैलेंडर. कैलेंडर क्या किया? कैलेंडर किया आपको यूनिफॉर्म गेज. प्लीज अंडरस्टैंड, कैलेंडर क्या करता है? यूनिफॉर्म गेज देता है. 2 रोल मिल में आपको कभी भी गेज नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म गेज कभी भी नहीं मिलेगा. और एक्सट्रूडर क्या है? व्हाट इज एक्सट्रूडर? एक्सट्रूडर क्या करता है? अगर आपको कोई प्रोफाइल बनाना है, कोई पर्टिकुलर शेप बनाना है, you can go with the extruder. एक्सट्रूडर में क्या होता है? एक्सट्रूडर में आपको एनी शेप, अगर आपको एक होस बनाना है, ओके, तो एक्सट्रूडर चाहिए ही चाहिए. अगर आपको कोई पाइप बनाना है, पाइप शेप, एनी शेप, ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल, एनी शेप you can give by the extruder.